Okay, so good morning, students. We'll start with our session. So today we will be looking into the different data types of PHP. So what does a data type mean? क्या रहता है data type? Yes, I hope I'm audible. कौन बताएगा data type मतलब क्या रहता है? Hello, वेरिएबल्स मैम। variables. Variable मतलब data type रहता है क्या? See, हम variable लेते हैं किसके लिए? उस variable, just imagine it as a container, and in that container you are going to save some type of data, right? So that data could be a type of number, it could be a type of string, it could be true or false, it could be a decimal number. So depending on the data which is stored, that defines the data type. So the PHP has different data types. So what does this first string data type means? String data type मतलब आप अपने suppose एक variable लिया है $a equal to whatever value you will be assigning. If that is given in double quotes, so that becomes a string type of data, right? समझ में आ रहा है? अगर मैंने वेरिएबल a लिया है, उसमें मैंने डाला है suppose some text which is enclosed in double quotes. I hope it is visible. $a का एग्जांपल आपको दिख रहा है क्या? Yes, somebody please reply. आपको ये दिख रहा है क्या? यस मैम, $a यस मैम। equal to Ma'am. double quotes में मैंने hello दिया है. Now what is our variable name? It is a. Now in this a, whatever data we are storing, if it is enclosed in double quotes, so that data becomes a string data type. Agree? Now next, integer मतलब some type of a number. So suppose I am taking variable a again. I can also take b, no problem. So मैंने a लिया है और इसमें now I am giving 1 2 as a data. So now this 12 is of which data type? It becomes a integer. So my question is, suppose I write like this. So what does this $a data type becomes? Yes, I have written $a equal to double quotes 12. Now this 12 is a number. So my question is, what data type does this 12 is? Integer. Can I say it Integer. as an integer or I have to say it as a string? No, integer. Number is assigned. इंटीजर मैम। पक्का? See, just now we had discussed, जब भी डबल कोट्स में कुछ डेटा है तो दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग, दो उसके अंदर नंबर है, बट यू आर ट्रीटिंग इट एज अ स्ट्रिंग. तो अगर ये जो मैंने डबल कोट्स में 12 दिया तो इट इज नो मोर ए इंटीजर टाइप, इट इज अ स्ट्रिंग टाइप. अगर इंटीजर है तो आई हैव टू गिव लाइक दिस $a equal to 12. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? यस, प्लीज रिप्लाई. हाँ, तो अगर डबल कोट्स में कुछ आया तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग. अभी यहाँ पे आपको खाली क्या दिख रहा है? 12, तो इट इज अ टाइप ऑफ अ नंबर, दैट इज व्हाई उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर, राइट? नाउ द थर्ड इज फ्लोट. सो फ्लोट मतलब जब भी आपका डेटा में देयर इज अ डेसिमल वैल्यू, डेसिमल सपोज 93.45, ऐसा कुछ मेरा डेटा है. So now when it encounters that there is a decimal point in that number, so it becomes a float type of data. Are you getting it? Yes? यस मैम। Now we are looking now Boolean. Boolean में क्या है, आता है? What does a Boolean data type means? What all values it can have? True True and or false. false. Okay.
Okay. So again, I'm taking a variable, suppose as b equal to true. So now this b variable is of what data type? Anybody? String. Yeah. हाँ? String? String. किसने बोला? किसने आंसर दिया? Who answered this? Yes. बोलो जल्दी जल्दी. कितनी हळूहळू रिप्लाय करताय, पटपट सांगा. स्ट्रिंग आहे का बुलियन आहे? यस निखिल मित्तल, कैन यू टेल मी $b में जो वैल्यू है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट हैज? इज इट अ बुलियन? वी जस्ट नाउ डिस्कस दैट ट्रू और फॉल्स अगर रहेगा तो इट बिकम्स अ बुलियन वैल्यू, बुलियन डेटा टाइप. सो एम आई राइट? डज द b हैज a boolean value? Nikhil Mittal, I'm asking you. Yes, Nikhil, are you there? चलो कौन बताएगा? Yes, ma'am. It's Boolean value. वैल्यू पक्का? अगेन यू आर मेकिंग सिली मिस्टेक. Miss SAB अभी हमने inverted डिस्कस commas किया मध्ये था. लिहिलंय हो. म्हणून ते स्ट्रिंग. हाँ, मग माझा क्वेश्चन तेच आहे की काय आहे? Should I call it स्ट्रिंग as a आहे. boolean data type or something else? स्ट्रिंग. String है, exactly. It is a string. Just now we discussed. So if it has to be a boolean, तो मुझे कैसा लिखने पड़ेगा? डबल कोट्स में नहीं लिखना है, सिर्फ सिंपल ट्रू लिखना है. ट्रू और क्या वैल्यू ले सकता है वो? फॉल्स. करेक्ट है? ये दो ही वैल्यू इसमें आ सकता है, ट्रू या फॉल्स, इफ इट इज अ बुलियन टाइप ऑफ डेटा. ओके. एरे क्या रहता है? व्हाट डज एरे कंसिस्ट ऑफ? हमने देखा था प्रैक्टिकल में. एरे मतलब क्या रहता है? Can I say it as a container which consists of different कप्पे असतात त्याला वेगवेगळे. इन अ वेरिएबल आप एक कोई भी सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं. सी अभी इतने हमने जो भी वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं, वेरिएबल में एट अ टाइम आप एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, राइट? Either it can consist of a number, it can consist of a string, it can consist of a floating number or a boolean. But suppose if I am in a need where I have to store multiple type of data in a single variable, so for that I need to use array. तो array कैसे रहता है हमने देखा था ऑलरेडी. कैसे रहेगा array and how do we reference to those numbers जो भी सेव हुए हैं? जस्ट वेट, मैं देखती हूँ मेरे पास इमेज है क्या. array एक मिनट मैं स्टॉप करती हूँ और दिखाती हूँ. यस, आर यू एबल टू व्यू इट? एरे कैसा रहता है? हमने ग्लोबल एरे का के बारे में डिस्कस किया था. तो एरे मतलब क्या रहता है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट का एक ही वेरिएबल रहता है. उस वेरिएबल को नाम एक रहता है, बट उसके अंदर हम अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं. एंड हाउ वी कैन एड्रेस दिस डेटा यूजिंग दिस इंडेक्स नंबर. मतलब मैंने सपोज दिया यहाँ पे ग्लोबल स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो उसमें वैल्यू क्या आएगी? ग्लोबल स्क्वायर ब्रैकेट में 0 मीन्स आई एम रेफरेंसिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो वैल्यू विल बी 10. इफ सपोज आई राइट ग्लोबल इक्वल टू 1, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे? ये स्टूडेंट्स, ग्लोबल 1 में बोल रही हूँ तो मैं कौन सी डेटा या वैल्यू को रेफर कर रही हूँ? टू द सेकेंड नंबर. तो क्या आएगा वैल्यू वहां पे? यस, 6, right? Similarly,
ग्लोबल 2 तर काय व्हॅल्यू येईल? Yes, global 2 लिखा मतलब I am referencing to the third number. So what will be third index number? क्या 15. आएगा? 15? Yes, ma'am. So are you getting how an array is? है ना? कळालं? Okay. So this is how an array is. अभी next data type है null. So क्या रहेगा null? क्या लगता है आपको null? null मतलब उस वेरिएबल में क्या लिखना मुझे पड़ेगा कि उसको बोलेंगे हम null है. a इक्वल टू क्या लिखूं कि null आएगा? null मतलब क्या है? खाली है. null मतलब क्या है? खाली है. It is empty. So how do I reference null? कैसे बताऊं मैं कि ये वेरिएबल खाली है? इनिशियलाइज किया मतलब उसमें हमने वैल्यू डाली है, राइट? अगर वो खाली है तो डू आई नीड टू इनिशियलाइज इट? सो उसका कैसे आएगा? सिर्फ $a मैंने लिया है, मतलब क्या किया मैंने? एक रिकाम में खाली एक कंटेनर लिया है, उसका नाम a है और उसके अंदर कुछ भी मैंने डाला नहीं है. Since I have not written anything equal to that variable, so it has got nothing in that. It is empty. That is why we say it as null. Okay. Now suppose आपने वेरिएबल बहुत सारे वेरिएबल लिए, you want to check what exactly data type it contains. अभी आपको जैसे कंफ्यूज हुआ, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स डाले तो यू गॉट कंफ्यूज कि ये इंटीजर रहेगा कि स्ट्रिंग रहेगा. तो PHP में एक मेथड है. मेथड मतलब क्या है? PHP में एक फंक्शन है जो हमारा काम आसान करेगा. कैसे? The name of that function is var_dump और इस ब्रैकेट में हम जो भी वेरिएबल देंगे उसका वो हमको डेटा टाइप निकाल के देगा. क्या बताया? There is a method called as var_dump in PHP जिसका काम क्या है? It will take the variable name and it will give the result as its data type. ठीक है? So let us check how does this variable work. ठीक है? So I'm just sharing my screen to see the coding. So अगर कोडिंग करना है तो कहाँ जाना है हमको? PHP का you have to go to XAMPP folder, htdocs and your folder name. तो मैंने यहाँ पे एक खाली फाइल बना के रखी है PHP. आपको दिख रही है ये फाइल? Is it visible? I'll just increase the font size. Yes, is it visible? Please reply. Yes, yes, ma'am. Yes. अभी क्या करेंगे? हम वेरिएबल लेंगे, सपोज वेरिएबल a. क्या किया है मैंने? सिर्फ वेरिएबल लेके रखा है. Now I'm going to use var_dump मेथड जिसका काम क्या है? जो भी वेरिएबल का नाम आप उसमें पास करोगे उसका वो डेटा टाइप हमको रिटर्न करेगा. ठीक है? तो ये हमको प्रिंट करवाना है क्या? वेरिएबल जो भी दिखाएगा रिजल्ट वो हमको प्रिंट करना है. यस. तो अगर मुझे कुछ डिस्प्ले करना है मेरे पेज पे तो व्हाट आई हैव टू राइट इफ आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग? वेरिएबल डंप का काम कळालंय का सबको? इसका काम समझा है? var_dump का काम क्या है मेथड का? उसके अंदर हम जो भी वेरिएबल देंगे वो क्या काम करके देगा? सिर्फ फंक्शन मतलब क्या है? उसको एक काम असाइन किया है, आप उसको बुला के उसको उसका काम करवाने को बोलना है. तो वेरिएबल डंप का काम क्या है? आप उसको जो भी आर्ग्यूमेंट दोगे, जो भी वेरिएबल देंगे वो क्या रिटर्न करेगा? हमको क्या आंसर ला के देगा कि ये जो वेरिएबल है इसमें कौन सा टाइप का डेटा है. सो इट विल रिटर्न एज द डेटा टाइप. एग्री? यस, प्लीज रिप्लाई. समझ में आया इतना वेरिएबल डंप का काम क्या है? यस मैम. अभी मुझे ये वैल्यू प्रिंट करवानी है. ये जो भी कुछ काम कर रहा है वो मुझे दिखाना है मेरे स्क्रीन पे.
तो माय क्वेश्चन इज, मुझे अगर कुछ स्क्रीन पे दिखाना है तो मैं क्या लिखूं उसके पहले? इफ आई वांट टू डिस्प्ले समथिंग, इको, यस, इको लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी? पीएचपी में अगर हमको कुछ डिस्प्ले करना है तो व्हाट डू वी राइट? इको, येस, प्लीज रिप्लाय. असं बसू नका, मला कळत नाही तुम्हाला कळतंय की नाही. सी, मला शिकवायचं असेल तर मी पटपट पटपट 40 मिनिटात शिकवून जाईन, बट देयर इज नो पॉइंट इफ यू डोंट अंडरस्टँड एनीथिंग. येस लोकेश, कळालंय तुला मी आता काय सांगितलं ते? Yes, ma'am. Yes. आता माझा क्वेश्चन कळाला का तुला? मला ह्याचा आन्सर प्रिंट करायचं आपल्या स्क्रीनवर, तर मी काय लिहिलं पाहिजे तिथे? इको लिहिलं पाहिजे का? हो, इको टॅग. हा, मग मी कुठे लिहिणार? इथे इको लिहिणार. इको काय प्रिंट करायचं ते मी सांगितलंय की व्हेरिएबल डमचं जे काय आंसर येईल ते प्रिंट करा. तो अभी हम मुझे बताओ, ये जो वेरिएबल डम में हमने ए दिया है, हमने ए को कुछ इनिशियलाइज किया है क्या? हैव वी इनिशियलाइज इट टू एनीथिंग इक्वल टू 12 और इक्वल टू सम स्ट्रिंग? नो, वी हैवंट इनिशियलाइज इट. सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आंसर विल दिस इको प्रिंट? Variable A. See, this variable dum क्या प्रिंट करता है? It prints the data. It will not print this. It will print the data type of this variable past. So what is the data type of this variable? आपण त्याच्यामध्ये काही व्हॅल्यू टाकली आहे का? Null. Ma'am, null. हमने उसमें कुछ भी अभी तक स्टोर ही किया नहीं, तो इट इज व्हाट? एम्प्टी, राइट? सो आइडियली व्हाट इट शुड प्रिंट? वी जस्ट सॉ, अगर एम्प्टी वेरिएबल है तो उसका डेटा टाइप क्या रहता है? Null. ये सोम भाव सर, कैन यू टेल मी? नल, वेरी गुड, नल, राइट. तो अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे. ओके, सो विल गो टू, मैं अभी यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट किया है लोकल होस्ट का, एंड विल सी टर्म. सो कैन यू सी व्हाट इट रिटर्न? इट रिटर्न, दिख रहा है आपको? व्हाट डिड इट रिटर्न? इट रिटर्न नल. व्हाई? बिकॉज इट इज सेइंग अनडिफाइंड वेरिएबल ए, क्योंकि हमने वेरिएबल ए लेके रखा है बट उसमें कुछ डाला ही नहीं है, तो उसने आंसर में क्या रिटर्न किया? हमको नल रिटर्न किया है. इधर तक सबको समझा है? आर यू क्लियर? Yes, ma'am. तो अभी मैं डालूंगी यहाँ पे a इक्वल टू 12 and I will save it. So now what value it should give me? Now this type, what is this 12? Which data type? Number. It is a number, so what it should print? Yes, what it should print? डेटा टाइप कौन सा आएगा? अभी हमने देखे ना कौन से डेटा टाइप देखे, स्ट्रिंग, इंटीजर. सो अगर 12 दिया है तो क्या आना चाहिए? Integer. इंटीजर. हाँ, तो विल सी क्या देता है वो. उसने क्या दिया है डेटा टाइप? आपको दिख रहा है इंट दिया है, मतलब इट इज इंटीजर टाइप ऑफ डेटा, एंड इनसाइड इट इज गिवन व्हाट नंबर यू हैव गिवन, मतलब एक्चुअल डेटा, राइट? समझा आपको? नाउ इफ आई से, हमारा जो डाउट था पहले वो हम देखेंगे. अभी हमने क्या दिया है? ए को वैल्यू क्या दी है? 12. बट नाउ इज इट अ नंबर दिस टाइम? Is it an integer this time? No. No, it is a number, right? So अभी हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है. क्या आया? Yes, now what it has shown us? String. Why? Because we have written that into a double quote. So it has now, it is no more a number or integer, but it is a string. अभी ये जो ब्रैकेट में दिया है, it gives the actually length. लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर्स है. ओके, सो सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ हेलो. सो मुझे बताओ अभी इसका वैल्यू क्या आएगा? वहां पे क्या प्रिंट होगा? हाउ विल बी दैट आउटपुट? अगर मैंने ए में दिया है हेलो, तो आउटपुट में क्या आएगा? इको वेयर डम क्या आएगा? String. स्ट्रिंग. ब्रैकेट में क्या आएगा? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो कितनी लेंथ है हमारी? 1 2 3 4 and 5 5. hello. Are there 5 characters?
तो क्या आएगा, स्ट्रिंग ब्रैकेट में 5 और उसके बाद डबल कोट्स में आएगा हेलो, वट एवर स्ट्रिंग यू हैव पास्ड, है ना? आर वी ऑन राइट ट्रैक? यस, ओके। अभी देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया, अभी मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। आई हैव रिटन हेलो 1 2 3, सो कैसे आएगा आउटपुट में? चलो जल्दी बताओ, कितने कैरेक्टर, कितना लेंथ है हमारे स्ट्रिंग का? 8. 8 या 9? 9. कैसे 9? कसं आलं लोकेश 9? स्पेस मुळे स्पेस पण काउंट होतो. वेरी गुड। उसने क्या किया, आप इधर बीच में जितने भी स्पेस दोगे तो हर एक स्पेस का वो कैरेक्टर पकड़ेगा। अभी यहाँ पे कितने स्पेस है? एक ही स्पेस है, हेलो सिंगल स्पेस 1 2 3, तो हेलो के कितने थे? 5 स्पेस आया 6, 1 7 2 8 एंड 3 9। तो लेट अस सी, हमारा अजम्पशन या हमने जो देखा वो करेक्ट है क्या? सी, इट गॉट 9। समझा? तो इधर की जो बीच की एक स्पेस थी उसने भी वो काउंट कर दी, क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग में डालते हो, स्ट्रिंग में जो कुछ भी एनक्लोज करते हो वो हर एक का एक कैरेक्टर पकड़ता है, दो इट इज अ स्पेस। ठीक है, इज इट ओके? आता नेक्स्ट कोणता डेटा टाइप बघितला आपण? बुल फ्लोट देखेंगे हम, ठीक है। 92.5 सपोज 5 6। अभी इधर क्या आएगा, प्रिंट क्या होगा आउटपुट में? Now this time this A consists of what data type? It consists of float. Agree? So let us see how we'll get that answer. काय आलं? डेटा टाइप का आला ह्यावेळेस फ्लोट आणि आतमध्ये त्यांनी काय दिला? त्याचा नंबर, जो ऍक्च्युअली नंबर है वो। यहाँ तक क्लियर है? यस प्लीज रिप्लाई। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट अभी मैंने क्या दिया है? $A इक्वल टू ट्रू। मैं सिर्फ इस लाइन में चेंजेस कर रही हूँ, जस्ट ऑब्जर्व। अभी मैंने वेरिएबल ए में क्या डाला है? ट्रू। तो नाउ टेल मी व्हाट आंसर वी विल बी गेटिंग? बुलियन. बुलियन, राइट? सो लेट अस सी क्या दिया उसने। बुल मतलब बुलियन, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या आया? जो भी आपकी वैल्यू है। ओके, नाउ वन मोर चेंज आई विल मेक हियर। इफ सपोज आई राइट, so now what answer should I get? Yes, string ब्रॅकेट मध्ये 1 2 3 4. 1 2 3 4 एक्सलेंट, आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर काय आहे? ट्रू. True. कळालं का स्ट्रिंग कसं आलं? कारण की आपण ट्रू जरी लिहिले तरी आपण ते डबल कोट्स मध्ये लिहिले, सो इट इज नाउ ट्रीटिंग इट एज अ स्ट्रिंग, और अंदर 4 एंड बाहर ट्रू। कळतंय सगळ्यांना? सोपं आहे? ओके, लास्ट क्या रह गया हमारा? ये एरे का हम बाद में देखेंगे। आई होप वी हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ये हमने ऑलरेडी ले लिया है हमारे जैसा एग्जाम्पल। जस्ट यहाँ पे नोट जो दिया है तो देखो, वेरिएबल डम गिव्स डिफरेंट आउटपुट फॉर ईच टाइप। असं का लिहिलंय? ऐसा क्यों लिखा है? वेरिएबल डम गिव्स डिफरेंट आउटपुट फॉर ईच टाइप, क्योंकि अगर वो डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो वो आउटपुट में क्या देता है? हमको लेंथ देता है स्ट्रिंग की, राइट? अगर वो एक नंबर है तो हमको वो ब्रैकेट में क्या देता है? एक्चुअल नंबर देता है। और अगर वो डेटा टाइप बूलियन है तो वो क्या देगा? बूलियन देगा, और ट्रू या फॉल्स है। तो हर एक डेटा टाइप के लिए अलग आउटपुट वो दे रहा है। स्ट्रिंग के लिए क्या देगा? ये जो मैंने बोल्ड करके रखा है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू नो। अगर स्ट्रिंग है तो वो देगा लेंथ कैलकुलेट करके, अगर इंटीजर है तो वो देगा एक्चुअल डिजिट देगा, मतलब मैंने 1 2 3 डाले हैं तो वो 1 2 3 ब्रैकेट में आएंगे। एंड अगर वो बुलियन है तो बुल के अंदर क्या देगा? वो ट्रू है कि फॉल्स है। क्लियर? ह्याचा सेंटेन्सचा अर्थ कळाला तुम्हाला सगळ्यांना? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कमेंट्स. सो व्हाट आर कमेंट्स? We have already seen comments in HTML, in JavaScript. So what exactly a comment is? मुझे बताओ, ये जो comment रहते हैं वो actually execute होते हैं क्या? Are they considered as the statements to be executed? Yes.
ये इसको प्रोग्राम का पार्ट बोलते हैं कि हमने अभी तक देखे सारे प्रोग्राम्स वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं. सो इफ सपोज our computer encounters a comment in our program, so is that line executed? That is my question. Yes, is that line executed? बोला रे. Is that line executed or it is ignored? Ignored. Ignored. Comments किसके लिए रहते हैं? उस प्रोग्राम में जो लिखा है, the one who is programming, उसको समझने के लिए कि ये मेरी पर्टिकुलर लाइन क्या काम करती है. तो सपोज अभी मैं एक इंजीनियर हूँ एंड आई एम डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, राइट, और मैंने जॉब छोड़ दिया है. तो मैंने जो भी कोडिंग किया है वो मेरा कोई और उसने उसको हैंड ओवर किया, तो उसको समझ में आना चाहिए मैंने जो भी कुछ कोडिंग किया है मेरा लॉजिक क्या है. तो उधर कमेंट्स में उसका एक्चुअली मतलब लिखा रहता है कि वो क्या काम करता है. ऑब्वियसली दैट पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स. वो सिर्फ जो प्रोग्राम है उसको समझने के लिए कि ये लाइन क्या काम करती है उसके लिए रहता है. तो वी नीड सम टाइम टू ऐड सम कमेंट्स इन आवर प्रोग्राम. सो अगर आपको कमेंट्स ऐड करने हैं तो देयर आर सम मेथड्स. एक तो आप ये जो डबल स्लैश है स्टेटमेंट के पहले डालना है या फिर स्टेटमेंट के पहले डालना है. ठीक है, ये तो बन गया सिंगल. मतलब अगर आपने एक लाइन में स्टार्टिंग में डबल स्लैश डाल दिए तो वो पूरी लाइन कमेंट बन जाएगी, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होगी दैट पर्टिकुलर लाइन. बट अगर आपके प्रोग्राम में ऐसे 4-5 लाइंस लिखे आपने जो एक्सप्लेनेशन है आपकी, सपोज फंक्शन का क्या काम करता है, तो अगर मेरे प्रोग्राम में 5 लाइंस है तो मैं ये स्लैश ना डालते हुए मल्टी लाइन का कमेंट यूज करूंगी. तो मल्टी लाइन कैसे होगा? स्लैश स्टार और इधर बीच में आएंगे जो 4-5 लाइन है और कमेंट एंड करते वक्त स्टार स्लैश. समझ में आया? तो सपोज विल टेक द प्रोग्राम यहाँ पे. सो सपोज आई वांट टू राइट हियर कि दिस वेरिएबल ए इज अ स्ट्रिंग टाइप. तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर सिंगल कमेंट है तो कैसे लिखूंगी? एक तो ऐसे 2 स्लैश करके लिखूंगी, दिस वेरिएबल ए इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, राइट. तो मुझे बताओ ये लाइन प्रिंट होगी क्या आउटपुट में? No. Why? Because we just now saw that comments are just for understanding for that programmer जो प्रोग्रामिंग कर रहा है. कंप्यूटर का इससे कुछ लेना देना नहीं है जब भी वो एग्जीक्यूट करेगा. This is for us to understand what does this line exactly means. तो हमने क्या लिखा? This variable a is of string type, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डबल कोट्स में डाला है. Somebody might get confused कि this is a boolean type. So no, उसका मतलब क्या है? This is a variable which is of string type. ठीक है. अभी सपोज यहाँ पे मुझे 3-4 लाइन लिखने हैं और, तो मैं कैसे लिखूंगी? अगर मुझे 3-4 लिखने हैं, प्लीज इग्नोर. और भी कुछ है, एग्जीक्यूट नेक्स्ट लाइन. ऐसे कुछ तो मेरे कमेंट से 3-4 लाइन के, तो मैं कैसे लिखूंगी उसको? अगर मुझे ये 3-4 लाइन कमेंट में डालने हैं एंड विच आई डोंट वांट देम टू बी एग्जीक्यूटेड, इसको वो प्रोग्राम मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा एग्जीक्यूट होगा ये जो हाईलाइटेड लाइंस है वो स्किप करेगा वो. तो अगर ऐसा मेरा मल्टी लाइन है तो एक देखो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, हर एक लाइन को सिंगल लाइन कमेंट कर सकती हूँ, राइट. या फिर मल्टी लाइन का क्या तरीका है? स्लैश स्टार एंड एंड में क्या आएगा? स्लैश स्टार. उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट. तो दिस कमेंट which is a multi-line comment will not be executed. आपको देखना है क्या ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है? वेट, सी मैंने रिफ्रेश किया है एंड यू कैन सी इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड. अभी सपोज मैंने ये ऐसा लिखा है, मैंने ये निकाल दिया, तो देखते क्या आता है. सी इट गेव अस एन एरर. करता है? आर यू गेटिंग? अभी हमने उसमें कमेंट डाला ही नहीं उसका, ना ही वो सिंगल स्लैश डाले, ना ही हैश डाला, ना ही मल्टी लाइन डाला. इसलिए वो क्या किया उसने? इट ट्रीटेड दिस लाइंस एज अ पार्ट ऑफ कोड
एंड उसकी वजह से हमको क्या आ गया है, एरर। देखो, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल स्ट्रिंग। इसीलिए जब भी कमेंट रहता है तो हमारा जो वो कोडिंग का पार्ट है वो इग्नोर किया जाता है। तो नाउ अगेन आई एम सेविंग इट एंड विल रिफ्रेश आवर कोड. So got it? Comments are ignored, right? Yes, please reply students. समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. करना. So this can be asked for your MCQ या fill in the blank. अगर single line comment है तो what are the possible things you can add? एक तो double slash या फिर hash. हाँ, कहाँ पे? At the end of the statement या beginning of the statement? At the beginning of the statement. So here I have highlighted, before a statement starts you have to add this double slash या फिर hash. अगर आपके लाइन 4-5 लाइन है, it is more than a single line, so you can use this method, multi-line, right? So remember, comments are ignored during execution. ये सिर्फ हमारे लिए है, प्रोग्रामर के लिए, कि वो क्या काम करता है लाइन पर्टिकुलर. It is not treated as a part of code. ठीक है? Now next we will be starting with the operators in PHP. So now यहाँ पे एक bold में statement लिखा है, क्या है? Operators of PHP are similar to JavaScript. So can anybody tell me JavaScript में हमने operators कितने देखे थे? How many types of operators we had studied in? देखो, अगर मैंने ये सिर्फ लाइन आपको बता दी तो मेरा ये पूरा पोर्शन ही खत्म होगा. Operators in PHP. करूँ क्या मैं ऐसा? Yes, because टेक्स्ट बुक में भी आप अगर खोल के देखोगे तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी हुए हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने पीएचपी का कुछ भी ऑपरेटर एक्सप्लेन नहीं किया है. सो शुड आई डू द सेम थिंग? यस, आई एम आस्किंग फॉर रिप्लाई. आपको जावास्क्रिप्ट के सारे ऑपरेटर समझे हैं? आर यू थरो विद दैट? यस, बोलो. ऐसा करना है कि यू वांट मी टू रिवाइज इट अगेन? रिवाइज करना है मैम. रिवाइज करना है तो उसके पहले आपका भी कुछ काम बनता है कि आपने जो भी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है वो थोड़ा तो आप पढ़ के आओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम हमको वापस पूरा डेप्थ में ना जाके जस्ट क्विकली वी विल गो थ्रू ऑल द ऑपरेटर्स. यस, आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करके आओगे, कल के लेक्चर के लिए ऑपरेटर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. Yes, ma'am. you can go to the JavaScript links on the YouTube and you can check. ठीक है? फिर भी अभी जितना टाइम है क्विकली विल गो थ्रू देम, फिर कल हम देखेंगे. Now tell me what is this concatenation? What does this concatenation mean? देखा है कैसे हमने कोई पढ़ा है concatenation in JavaScript? Yes. No one. Concatenation याद नहीं आ रहा है? Suppose मेरे दो वेरिएबल है, वेरिएबल a इक्वल टू 2, वेरिएबल b इक्वल टू 2, एंड आई राइट वेरिएबल c इक्वल टू a प्लस b. सो c में क्या वैल्यू आएगी? जस्ट विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट. वेरिएबल, अभी ये स्मॉल है var, वेरिएबल a इक्वल टू 2, वेरिएबल b equal to 2, and I am saying variable c equal to a plus b. So what answer will it give me for variable c? Yes, c मध्ये किती वैल्यू आहे? चलो जल्दी जल्दी बताओ, लास्ट 1 मिनट. a में कितना है? 2, b में कितना है? 2. तो मैं ऑपरेशन कौन सा कर रही हूँ? एडिशन का, a प्लस b. तो c में कितना आएगा? 4 आएगा. एवरीवन यस, किती सिंपल आहे. a मध्ये किती आहे? 2, b मध्ये किती आहे? 2. सो a प्लस b चं व्हॅल्यू किती येईल? 4. 4 येईल. Now I am making some changes here.
variable a equal to 2, again variable b equal to 2, but now this time I have enclosed this 2 in double quotes. So now first tell me what data type does this becomes? B. Is it a number still or something else? String. String. So when I am trying to add an integer number with a string, तो वो addition operation हो जाएगा या concatenation होगा? Concatenation मतलब क्या है? जोड़ना, simple जोड़ना. तो अभी मुझे इसका आंसर बताओ, C में क्या आएगा? 2. C में क्या आएगा? 5 मिनट. C में क्या आएगा?